Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra and I am preacher of Srimad Bhagavad Gita. Today I am going to talk about Prem, love, pyar. But before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by S.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhupada from ISKCON temple, and this is the most authentic source and this is the best version of Srimad Bhagavad Gita. And Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense it's a pure book of the science and humanity, and I am trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide. तो आज बात करते हैं प्यार की, प्रेम की बात करते हैं, मतलब अलग अलग व्यू जानेंगे। भागवत गीता का क्या व्यू है प्रेम के बारे में, बाइबल का क्या व्यू है, कुरान शरीफ का क्या व्यू है, और हमारा परसेप्शन क्या है, और जो लोग सुसाइड करते हैं प्रेम में, प्यार में, वो भी कितना गलत है। एक तरफा प्यार, वो सब कुछ वो मैं बात करूँगा क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ था। देयर इज अ इंसिडेंट I saw one of the Muslim girl who commit suicide. Means she was suffering for dowry and also torture from her husband, and she got jumped into Sabarmati river on 25th of February. तो आज बात करते हैं उस बारे में, और पहले प्यार के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं, अल्लाह प्रॉफिट क्या कहते हैं प्यार के बारे में, और बाइबल क्या कहती है प्यार के बारे में, और लोग का परसेप्शन क्या है। हम लोगों का परसेप्शन अलग होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट परसेप्शन ऑन अ लव, एंड मैनी पीपल आर वेरी lunatic behind the love and consider love as everything, but actually they don't know actual meaning of love. But let's talk about the meaning of love. First we will start from the meaning of love. So let's start. First we will talk about Abrahamic religion. Let's talk about Abrahamic religion. In this religion, if we talk about love, love is the greatest power in the world of existence. In Abrahamic religion, it is said love is the greatest power in the world of existence, and the true source of the love is God. यहाँ पे प्रॉफिट बताते ट्रू लव ऑफ सोर्स इज गॉड। अगर प्यार करना है तो परमात्मा से करो, भक्ति करनी है तो परमात्मा से करो। भक्ति और प्यार दोनों सिमिलर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और बाहा टीचिंग स्टेट दैट ऑल द जेन्युइन लव इज डिवाइन। जो जेन्युइन लव होता है ना, वो हमेशा डिवाइन होता है। डिविनिटी क्या है, डिवोशन क्या है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिवोशन इज टू सरेंडर। समर्पण वो मतलब फर्स्ट स्टेप है भक्ति का। तो भक्ति और प्रेम से ही भक्ति का जन्म होता है, क्योंकि विदाउट प्रेम देयर इज नो डिवोशन, देयर इज नो लव इज ऑलवेज डिवाइन। जेन्युइन लव इज ऑलवेज डिवाइन। लव प्रोसीड फ्रॉम द गॉड एंड ऑल्सो सोर्स ऑफ द इटर्नल हैप्पीनेस। जो प्रेम आपको हैप्पीनेस, आपको खुशी नहीं दे सकता, वो प्यार नहीं होता है, वो खाली समझौता होता है और एन्चांटमेंट होता है। एन्चांटमेंट, लॉर्ड कृष्णा सेड हियर, प्रॉफिट सेड, एंड एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट फर्स्ट। गॉड्स लव इज टॉट to be a part of its own essence, and love, it means his love for his creature means there is a equal love for all beings, there is a no discrimination. परमात्मा का जो प्यार है, प्रॉफिट का प्यार है, जो अल्लाह का जो प्यार है, वो कभी सभी के लिए सिमिलर होगा। ये मतलब अब्राहमिक रिलीजन में कहा गया है, जो कुरान शरीफ में कहा गया है। मतलब एक तरफा प्यार, मतलब हमेशा सिमिलर वे में प्यार होता है, हमेशा देना ही होता है, हमेशा सेल्फलेस होता है प्यार, हमेशा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग for love, then you will definitely fall down in this material world. If you are expecting to get back same amount of love from that person to whom you have given that love, then it will definitely convert into the business. There is no value in the business, in the love. Business and love both are different.
So in the love there is a no business, and love is always selfless, always without any expectation. There is a no expectation in the love. There is a no desire. There is a no any kind of enchantment. So that is called love. And I want to talk about further the love of God. Human becomes a transform and become a self-sacrificing. Another meaning of love is self-sacrificing. Always do anything to whom we loved, for our beloved people. If we loved God, then we have to do all things in order to please our God. That is called a devotion. That is a divine love. And we all have to believe in divine love. The love with a soul, not from physical body, not from physical pleasure, not from sexual attachment, sexual intercourse. There is a no love. However, these all are required to produce a child, but that is not love. Love is somehow different, and sexual attachment, these all things are totally different from each other. तो क्रिश्चियनिटी के बात करते हैं. यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में गॉड कहते हैं गॉड इज़ अ सोर्स ऑफ एंड एसेंस ऑफ इटर्नल लव. हमारे अंदर जो भी प्यार आ रहा है, गॉड इज सोर्स. गॉड इज सोर्स ऑफ इटर्नल लव. न्यू टेस्टामेंट द एक्सप्रेशन गॉड इज लव, यहाँ पे बता दिया है गॉड इज लव एंड लव इज गॉड. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द गॉड एंड लव. बोथ आर सिमिलर. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिवोशन and God, and also divine love. Here Bible talk about divine love. As per Bible, there is a divine love. God is source of all eternal love, all kind of eternal love. Love gives a strengthen of mind, strengthen of the soul. As per Bible, love gives strengthen of the mind, strengthen of the soul, and also first commandment in the addition in the second. Thou shalt love thy neighbor as thyself, means to the greatest commandment here said, a new command I give you, love one another. And as I loved you, so you must love another one. अगर मैं आपको प्यार दे रहा हूँ तो आपको किसी और को प्यार देना है. मतलब इट्स लाइक अ साइकिल. इफ आई एम गिविंग यू लव, देन यू हैव टू गिव दैट लव टू समवन, and that someone means another person will definitely give a love to someone. It's all about cycle. मतलब प्यार की साइकिल होती है. हमें मतलब एक होता है मर्सी, दया, कंपेशन, उसी से प्यार का जन्म होता है. विदाउट कंपेशन, विदाउट मर्सी, देयर इज अ नो लव. द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ लव इज कंपेशन एंड मर्सी ऑन द पीपल. And arrogance and also conceit, there's all our origin for the enchantment. तो मतलब बाइबल ये कहती है अबाउट परमात्मा के प्रति लव. मीन्स वॉट जोसेफ ऑफ मैथ्यू here stated about 5 types of the love. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. It is said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemy and pray for those who are persecute you, and that you may be children of your Father in heaven. यहाँ पे बता दिया है love your neighbor and hate your enemy. It is said, people are saying like that, but I would say Joseph Matthew say in Bible, love your enemies. Even Lord Krishna said, समशत्रु च मित्र तथा मान अपमान योह. समशत्रु, the person who is treating friend and enemy equally, मतलब दोनों को एक तरफा एक समान प्यार दे, उसी को कर्मयोगी कहते हैं. और ऐसा व्यक्ति लॉर्ड कृष्णा को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है. वो चीज़ बाइबल में भी कही गई है. बट आई टेल यू, लव योर एनिमी एंड प्रे फॉर दोज हु persecute you, and that you may be a children of your Father in heaven. Who is your Father? Supreme Personality of Godhead, Paramatma, Jesus Christ is your Father. So He will be Father in your heaven.
He caused his sun to rise on the evil and the God and the good. Rises means sun to rise on the evil and also good. And he sent the rain on the righteous and unrighteous. If you love those who love you, what reward you will get? मतलब आप जिसको प्यार, जो आपको प्यार करता है उसी को आप प्यार करोगे तो then what will you get? If you love, listen it very carefully. If you love those who love you, जो आपको प्यार कर रहा है उसी को आप प्यार कर रहे हैं तो then what kind of reward you will get? You will nothing you will get. Means are not even the tax collector doing that? मीन्स ऐसा लोग टैक्स कलेक्टर भी मतलब नहीं करते क्या? मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर भी ऐसा नहीं करते क्या कि आप मतलब आप जिसको प्यार दे रहे हो वही आपको मतलब आपको जो प्यार करे उसी को आप प्यार करना है? ऐसा तो मतलब टैक्स कलेक्टर भी करता है. इफ़ यू ग्रीट ओनली योर ओन पीपल, व्हाट आर यू डूइंग मोर देन अदर्स? मतलब आप अपने जो अपने प्रिय है, अपने बिलव्ड पीपल है, उनको आप ग्रीट करोगे तो देन व्हाट विल यू गेट? You are nothing doing it different from other people. You are also doing same thing what other people are doing. Na? Don't even pagans do that. Be perfect. Therefore, as your heavenly Father is perfect. So your heavenly Father is perfect. परमात्मा का जो प्यार होता है ना सबके लिए इक्वल होता है. तो हमें भी अगर हम जिसको प्यार कर रहे हैं ना उसका मतलब ये नहीं कि हम उसके प्रति एक्सपेक्टेशन रखें. ये चीज़ हस्बैंड वाइफ में होता है. अगर मतलब वाइफ बोलती है मैंने आपके लिए वो किया, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आपको भी मुझे प्यार करना है, ऐसा नहीं होता है. अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार करता है तो वाइफ भी अपने हस्बैंड को उचित प्यार करेंगी. मतलब इसका मतलब ये नहीं एक्सपेक्टेशन से झगड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशन से कन्फ्लिक्ट होता है, एक्सपेक्टेशन से रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होते. If I would impose my thought on my wife, then there is no freedom, there is no liberty for my wife, and all the relation will be converted into conflict, and conflict, this kind of relation will definitely become an end. So what should we have to do? We have to give all kind of freedom to our wives, and we have to teach them about dharma and about the godly love, divine love. चलिए बात करते ही अभी इस्लाम की. अभी इस्लाम के लिए बात किया था बट अभी वापस इस्लाम की बात करते हैं. इस्लामिज़म, कुरान शरीफ की बात करते हैं. मुस्लिम आर डायरेक्टेड बाय अल्लाह. मुस्लिम आर डायरेक्टेड बाय अल्लाह इन द वेज टू बिकम क्लोज टू हिम एंड हाउ टू गेन हिज लव. मतलब अल्लाह हमें डायरेक्ट करेंगे कि अल्लाह के पास हमें कैसे जाना है, अल्लाह की इबादत हमें कैसे करनी है, वो हमें डायरेक्ट करेंगे. ही इज सिचुएटेड विद इन अस, ही इज विद इन अस एंड वी आर विद इन दैम. अल्लाह इज देयर, ही इज ऑलवेज, ही इज एवरीवेयर, ही इज इटर्नल. वो हमारे इटर्नल है. एंड ही डायरेक्ट यू टू बिकम अ क्लोज टू हिम एंड हाउ टू गेन हिज लव. उनका प्यार कैसे प्राप्त करें वो हमें उन्हीं से सीखने को मिलेगा. नोबडी विल टीच यू. God loves those who, listen it very carefully. परमात्मा अल्लाह किसको प्यार करते हैं? आप ये बात सुनना और अपने जीवन में उतारना. God loves those who do good, जो अच्छा कार्य करे. Do a good, first good in karma, are pure and clean. That person heart must be pure and clean. That God will definitely love that person, and Allah will surely love that person. एंड आर राइटियस मीन्स हमेशा राइट काम करे, अच्छा काम करे फॉर सोसाइटी के लिए. एंड आर जस्ट एक्ट राइटली, ऑलवेज वर्क फॉर द राइट थिंग्स एंड राइट पर्सन एंड ट्रस्ट हिम. और जो अल्लाह के ऊपर विश्वास करे उन्हीं को अल्लाह प्यार देंगे. कृष्णा भी वही कहते हैं ना, अगर जो मुझे पे विश्वास करेगा उसको मैं सब कुछ दे दूंगा. एक बार मुझे सरेंडर करके देखो तो सही. That's why Lord Krishna said, Sarva dharman paritejante mame ekam saranam vajra aham tam sarva papebhyo mokshasyami ma sula. Krishna here said, Sarva dharman paritejante means सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ.
मैं तुम्हें तुम्हारे सभी कर्मों से मुक्त करूंगा, तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा और तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। पार्थ, तो लॉर्ड कृष्ण भी वही कहते, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पे विश्वास करो। आर पेशेंट्स एंड ऑल्सो प्रिजर्विंग, जो मतलब हमेशा धैर्यवान हो, उनको अल्लाह प्यार करेंगे। लव हिम एंड ऑल्सो फॉलो द प्रॉफिट, जो अल्लाह को प्यार करेंगे उन्हीं को अल्लाह प्यार करेंगे। बस सबके लिए इक्वल प्रेम होता है। कृष्णा भी वही कहते हैं, जो मुझे प्यार करेंगे उन्हीं को मैं प्यार करूंगा, बट जो मेरा प्यार होता है सभी के लिए इक्वल होता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, बट माई डिवोटीज आर वेरी डियर टू मी। जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी आराधना करता है, वो मेरे अंदर समा जाता है, उसी के अंदर मैं समा जाता हूँ। तो वही लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, फाइट हिज कोज, मतलब एक जो कारण होता है, एक कोज होता है, जो सोसाइटी के लिए होता है, जो पब्लिक के लिए होता है, जो राइट थिंग के लिए होता है, उसके लिए फाइट करे। अल्लाह उसी को प्यार करते हैं। कुरान शरीफ सेड, कुरान शरीफ ऑल्सो सेज दैट गॉड लव मोसेस एंड गॉड हिमसेल्फ विल प्रोड्यूस पीपल ही विल लव। गॉड, अल्लाह उन्हीं को प्रोड्यूस करते हैं जो उनको प्यार करे। उनके प्यार करने के लिए ही अल्लाह ने सब कुछ प्रोड्यूस किया हुआ है। हियर इन दिस सेक्शन ऑफ द वर्स वी नोटिस अगेंस्ट द अरबिक प्रेफरेंस फॉर द नेगेटिव टू state and opposite, while the following don't state the God hates, that doesn't mean God hates to other people. गॉड मतलब अल्लाह ने सभी को प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को वो इक्वली प्यार देते हैं, किसी को नफरत नहीं देते। इट सर्टनली एनफोर्स द आइडिया दैट द लव ऑफ गॉड इज withheld फ्रॉम दोज हु प्रैक्टिस सर्टन डीड्स। अगर वो कोई अच्छे काम करे, अच्छे कार्य करे, तो लव उनके अंदर होता है, अल्लाह भी उनको प्यार देंगे। एंड और आर डिस्क्राइब्ड एज मैनिफेस्टिंग अ सर्टन कैरेक्टर, मतलब जो प्रॉफिट होते हैं ना, अल्लाह होते हैं ना, उनको अच्छे कैरेक्टर बनाएगा। सेवरल ऑफ द वर्सेस आर रिपीटियस एंड सो वी हैव फॉलोइंग कैटेगरीज। गॉड डजंट लव, परमात्मा अल्लाह किसको प्यार नहीं करते। ये चीज़ बहुत याद रखना और अपने जीवन में उतारना, अल्लाह किसको प्यार नहीं करते। फर्स्ट, मुताहिदीन, दोज हु ओवरस्टेप बाउंड्रीज और लिमिट, जो अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हैं, जो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, उनको अल्लाह कभी प्यार नहीं करते। ए सर्टन बाउंड्री और लिमिट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा व्हाट काइंड ऑफ बाउंड्री, बट समथिंग रॉन्ग फॉर द सोसाइटी। फर्स्ट वन इज मुताहिदीन, सेकंड वन इज फासिदीन। फासिदीन मीन्स दोज हु स्प्रेड करप्शन एंड मिसचीव्स, जो करप्शन फैला रहे हैं, जो मिसचीवियस है, उनको कभी भी अल्लाह प्यार नहीं करते, अल्लाह का प्यार उनको नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं फासिदीन। थर्ड वन इज काफिरीन, अनबिलीवर्स। काफिर मतलब अनबिलीवेबल इन गॉड एंड अल्लाह, मतलब अल्लाह के प्रति जिनका बिलीव ही नहीं है, उनको ट्रस्ट ही नहीं है अल्लाह के प्रति, उनको कभी अल्लाह प्यार नहीं करेंगे। फोर्थ वन इज दालमीन, द रॉन्ग डियर्स और अपोजर्स, हमेशा जो सही चीज़ हो रहा है उसको अपोज करेंगे, उसको रॉन्ग डियर होगा, खराब कर्म करेंगे सोसाइटी के लिए, उसको बोलते हैं दालमीन, उनको कभी भी अल्लाह प्यार नहीं करेंगे। थर्ड वन इज मुसरफिन वेस्टफुल, द पीपल हु आर लिविंग लाइक एनिमल एंड लाइक लिविंग इन डार्कनेस एंड इल्यूजन, उनको कभी अल्लाह प्यार नहीं करेंगे। फिफ्थ वन इज प्राउड एंड बोस्टफुल, हमेशा अपने आप को प्राउडफुल एरोगेंस होगा, उनको कभी अल्लाह प्यार नहीं करेंगे। ट्रीचरियस लोगों को अल्लाह कभी प्यार नहीं करेंगे। एंड दोज हु आर गिवन टू अ क्राइम एंड इविल स्पीकिंग, हमेशा क्राइम बढ़ाते रहे, इविल खराब चीज़ बात करते हो, उनको कभी अल्लाह प्यार नहीं करेंगे। तो मतलब ये चीज़ याद रखना कि इन लोगों को अल्लाह प्यार नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट बुद्धिज्म, इंडियन रिलीजन। अबाउट बुद्धिज्म की बात करेंगे। कामा इज सेंसियस लव, काम क्या है? कामा इज सेंसियस लव, हम उसको फील कर पाएंगे। सेक्सुअल अटैचमेंट, उसको काम बोलेंगे। द वास्ट मेजोरिटी बिलीव इट टू बी अ ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट एंड परसीविंग इट एज अ सेल्फिश, मतलब काम है वो, मतलब मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव दैट ऑब्स्टेकल एक अवरोध है ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट,
अगर हमारी आत्मा का रियलाइजेशन के लिए वो एक ऑब्स्टेकल है, हमारी आत्मा का रियलाइजेशन नहीं होगा काम से, वो दैट इज़ नॉट ट्रू। हमें कामनाओं में उसके साथ अटैच नहीं होना है। हाउ एवर वी आर एक्चुअली इंडल्ज विद सेक्शुअल एक्टिविटीज़, बट वी डोंट हैव टू ब्लाइंडली only and only thinking about sexual activity without attachment, without following। उसको सब कुछ करना है पर उसके साथ अटैच नहीं होना है। ये बहुत अलग चीज़ है, उसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिटेच विथ कामा। हाउ एवर वी इंडल्ज इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़, बट हाउ विल वी गेट डिटैचमेंट, उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में अटैच नहीं होना है। लस्ट से कैसे विपरीत होना है। लस्ट और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बोथ आर डिफरेंट, बट हम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लस्ट कहते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बोधिसत्व, उसके पहले बात करते हैं करुणा इज अ कंपैशन एंड मर्सी विच रिड्यूस द सफरिंग ऑफ अदर्स। हम किसी के ऊपर करुणा रखें, किसी के ऊपर कंपैशन रखें, किसी के ऊपर मर्सी रखें, तो हमें बहुत सारी चीज़ों से, सफरिंग से हमें मुक्ति मिल जाएंगी। एंड इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री टू विजडम एंड इज़ नेसेसरी फॉर एनलाइटनमेंट। करुणा, दया, वो एनलाइटनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स टॉक अबाउट बोधिसत्व। Bodhisattva, ideal in Tibetan Buddhism, involve the complete renunciation of oneself in order to take on the burden of suffering the world. The strongest motivation one has in order to take the path of the Bodhisattva is the idea of the salvation with the unselfish love for others. Unselfish, without self-interest, there is a love for others. It is the only and only way to get a salvation. Let's talk about Hinduism and let's talk about प्रेम। और श्रीमद् भागवत गीता said, both Radha and Krishna said, in a contrast to Kama. First let's talk about Kama. Kama is pleasurable, personification by the god Kama. God Kama, Kamdev. For many Hindu school, it is the third end of the life. It is the third end of life. Is the third end in the life. Okay. In the contrast to Kama, Prem or Prema refers to elevated love. Elevated love, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे, एलिवेशन देंगे, उसी को प्यार बोलते हैं। And love is Hinduism. Love in Hinduism is a sacrament and it preaches that one gives up selfishness in the love. Listen it very carefully. One gives up selfishness in love, not expecting anything in the return. Not expecting, listen it very carefully, not expecting anything in return. It also believes God is love. In Bhagavad Gita, it is said God is love. A sacred text named as a Kanda Guru Kavasa, quote, "O holy great flame, grant me with love." And you said the spreading love is Parabrahma. Parabrahma is love. For the things which is everywhere is only love. Love is only thing which is like a soul within us. Love is Kumara. Love is Kanda. And simply means love is God. Love is God. The love of Hindu deity Krishna with a Radha and many other gopis, milkmaids of Vrindavan is highly revered, highly sacred. Is our amorous dance with the gopis become known as a Ras Leela, where romanticized in the poetry of Jayadev, the author of Gita Govinda. This become important as a part of development of the Krishna Bhakti tradition, worshipping Radha Krishna. This is all about Hinduism. Let's talk about Sikhism. What Guru Gobind Sahib, Guru Granth Sahib said about love. Sikhism, love means love for the Lord and His creation. Listen it very carefully. Love for the Lord and His creation.
equal love for each and every living entity, because each and every living entity is part of his creation. He has created all things, so we have to love each and every people, each and every living entity equally, means love equal for everyone. This is one of the 5 virtues vigorous promoted by Sikh gurus. The other 4 quality in the arsenal are the truth, satya, contentment, santokah, compassion, daya, humility, nimrata. These 5 qualities are essential for the Sikh, and it is their duty to meditate on and also recite the Guru Bani, so that these virtues become a part of their mindset. What Guru Granth Sahib said about love: love is positive and powerful tool in the Sikh arsenal of virtues. Love is very positive and powerful tool in the Sikh arsenal of virtues. When one's mind is in full of love, one will overlook deficiency in others. मतलब हम किसी व्यक्ति में खामियां नहीं देखते, हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो किसी में खामियां नहीं देखते, ब्लाइंडली फॉलोइंग इवन इन दिस कलयुगा, बिकॉज लॉर्ड इज, वो साक्षी है, भगवान साक्षी है, परमात्मा कृष्णा साक्षी है, कृष्णा इज विटनेस फॉर द लव. इफ आई एम गिविंग अ ट्रांससेंडेंटल लव टू द पीपल, then I don't have to think about anything. Even that person will cheat me, I don't have to think about anything, because Lord Krishna is witness for the love. Guru Bani teaches that Vaheguru is loving God. Vaheguru, full of compassion and also kindness. He is full of compassion and kindness. It is the duty of Sikh to take on qualities of this nature and to easily forgive. These qualities require easily to forgive to anyone, never hate anyone. This is the most important, never hate anyone, and live in Vaheguru's hukum or instruction, and practice compassion and humility. In the Dasam Granth, it is stated that Anga 40 that he who is absorbed in true love, he would realize the Lord. So अपने ट्रू लव, ट्रांसेंडेंट लव में जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसको परमात्मा की ज्ञाति हो जाएगी. He will surely, he would realize the God or Lord. So that's all about love. और रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बात करते हैं कि एक तरफा प्यार, पर हमेशा एक तरफा ही प्यार होता है. प्यार दो तरफा होता ही नहीं है. अगर मैं आपको प्यार दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप भी मुझे प्यार दोगे, वो तो बिजनेस हो जाएगा ना. अगर मैं आपको प्यार दे रहा हूँ, आप किसी और को प्यार देना, वो भी किसी और को प्यार देगा, तो उसका मतलब साइकिल चलता है, एक साइकिल होता है. एक तरफा ही प्यार होता है, सेल्फलेस प्यार होता है, ट्रांसेंडेंटल लव होता है. बाकी तो लोग करते हैं, लोग समझ नहीं